Okay, in the last class, we understood hyperparameter tuning, right? And in that, I think we covered grid search and random search, and practical implementation remains absent, right? We have not discussed practical implementation, so we will discuss it later on after this topic. So today's topic is okay, ensemble learning, right? So today we are going to learn about ensemble learning, what it is all about, right? So, ensemble learning, have you all ever heard this term, ensemble learning? What ensemble means here? Anyone? No idea? No idea, sir. Okay, ensemble learning, nothing. It is a hybrid learning. We can say it hybrid learning. Why we are saying it hybrid learning? We are, what we will do, in this case, in ensemble learning, we will combine several base model, base model to produce optimal optimal predictive model. What it means to say that we are going to make a nested model of using multiple base model, like right, इसका जो मेन फंडा है बच्चे वो ये है कि भाई इंडिविजुअल जो मॉडल है, हो सकता है कि उसकी जो प्रिडिक्टिव पावर है वो उतनी अच्छी ना आ रही हो, उतनी एक्यूरेसी ना आ रही हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मल्टीपल बेस मॉडल को कंबाइन कर देते हैं और एक स्ट्रॉन्ग मॉडल जनरेट कर देते हैं। तो व्हाट इट मीन्स टू से दैट ऑल द ऑल द बेस मॉडल्स आर वी assume that all the base models are weak classifier weak classifier and we are going to use multiple views classifier and combine them and make it a powerful powerful classifier, right? If you understood it, I think for better understanding, let us discuss about distributed system, right? In the distributed system, what you have, how you increase the power of distributed system? Simply connecting multiple. What is distributed system? According to you, what is distributed system? What is distributed system, guys? It is a network of network of multiple standalone system, right? ऐसा ही होता है बच्चे। आप मल्टीपल कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट कर देते हो वाया इंटरनेट और नेटवर्क फैसिलिटी, और आप उसको कंबाइनली बोल देते हो एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जहां पर हर एक कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा, or like a mesh network, right? Like a mesh network, like this. So what was your benefit of creating distributed system? क्यों करा था आपने ये काम? क्यों किया था बच्चे? So for performance increase, हाँ, for performance increase, right? resources Perfor sharing resources. Performance increase, right? So in this case, sharing resources also is there, sharing resources, right? But in this case, performance increment in performance is main funda, right? Because if a single system can perform, let's say 100 instructions per second, then by combining all multiple systems of 100 instructions per second, we can get how many? Let's say we have combined four systems. That means in one run we can get 400 instructions per second executed, right? So what we have done, we have simply increased our performance by deploying multiple computers in the network, right? So we can use their resources like memory, like processing power, right? That was our
basic need, right? Similarly, if you understood it like this way, this is ensemble method. Ensemble classifier is a group, is a collection of multiple base classifier, so that we can produce optimal predictive model, right? अभी समझ में आया बच्चे? तो ensemble लर्निंग में क्या करना है हमें? अब हो सकता है भाई कि आपने कोई कोई किसी डेटा सेट पे आपने एक क्लासीफायर अप्लाई किया, उसकी कुछ एक्यूरेसी आई। दूसरा क्लासीफायर अप्लाई किया, उसकी कुछ ज्यादा अच्छी क्या कहते हैं, एक्यूरेसी आई। फिर कोई तीसरा मॉडल आपने अप्लाई किया, उसकी कुछ अच्छी, उससे भी ज्यादा अच्छी वो आई। तो कुल मिला के आपको, यानी कि आपको क्या करना होगा, एक एक करके सारे सारे के सारे मॉडल्स अप्लाई कर करके देखने होंगे, तब जाके आप फाइंड आउट करोगे कि कौन सा बेस्ट मॉडल है, राइट? बट अगर हम ये ना करना चाहें, हम क्या करें कि हमारे पास जितने भी मॉडल्स हैं, वी जितने भी बेस मॉडल्स हैं, उनको एक साथ एक ही रन में हम अप्लाई करें, और इनके जितने भी आउटपुट्स आएंगे उनका वाया एवरेजिंग एवरेजिंग और वोटिंग मेथड वी कैन जनरेट prediction. So in that case we can say that this ensemble is producing this much of average, or this much of best predictive accuracy, right? Right guys? तो एक ही मॉडल पे हम डिपेंडेंट नहीं है। इसकी जरूरत क्या है बच्चे? अब जैसे मान लो आपने किसी लेट से आपने आपने को एक नई मूवी आई, और आपके फ्रेंड्स ने उसे देख लिया और आपके कलीग्स ने उसे देख लिया, बट आपने नहीं देखा है, बट आप उनसे उनसे जजमेंट लेना चाह रहे हो कि भाई देखने से पहले मैं एक बार पता कर लूं कि भाई किसका क्या क्या रिव्यू है उस पे। तो लेट से आपका जो एक फ्रेंड है, उसने बोला कि वेरी गुड मूवी है भाई, आप देख लो। आपका एक कलीग है, उसने बोला कि सो 50-50, सो है जी, देखना हो तो देख ले, नहीं तो ऐसा कोई खास भी नहीं है। और एक लेट से तीसरा बंदा है जो कि बहुत ज्यादा मूवीज देखता है, और जिस मूवीज को आप देखना जा रहे हैं, हो सकता है वो फॉर एग्जांपल वो अक्षय कुमार की मूवी है या किसी की मूवी है, तो उसके लिए उस बंदे ने जो बोला, उसने कहा कि बेस्ट मूवी है भाई, तुझे देखनी ही चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज मिले आपको। आपने तीन बंदों से पूछा, तीनों ने अलग अलग रिस्पॉन्स दिया, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई, अब हो सकता है ना कि अगर आप एक पे डिपेंडेंट हो जाए, मान लो आपने आपने अपने दोस्त, जो पहला दोस्त है, उससे उससे उसके रिव्यू को देख के देखने चले गए और आपको अच्छी ना लगी, तो आप क्या कहोगे? अरे यार, ये तो झूठ बोल गया बंदा, है ना? एक ने बोला सो, ठीक है, फिर आपने कहा यार, आपने वहीं पे डिसीजन ड्रॉप कर दिया कि यार सो बोल रहा है, क्या फालतू में पैसे बर्बाद करने, 3 घंटे बर्बाद करने, राइट? बट एक बंदे ने बोला बेस्ट है, ठीक है, और इसको आपने कंसिडर कर लिया कि भाई इसने बेस्ट बोला, चल अब तो देखनी चाहिए इसे, ठीक है। आपने देखा पर आपको बेस्ट नहीं लगी, राइट? तो यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर बायसेस आ गए। तो इंडिविजुअल क्लासिफायर में हैव बायसेस, राइट? हो सकता है कि जिसने आपको बेस्ट बोला, वो वो कतई आपका क्या कहते हैं, अक्षय कुमार का फैन हो, राइट? वो अक्षय कुमार का फैन था, तो उसको तो भाई अक्षय कुमार की कोई भी मूवी दे दोगे तो वो तो अच्छा ही बोलेगा उसको। तो हो सकता है कि आपके किसी एक क्लासिफायर में बायसनेस हो, तो वो बायसनेस जो इंडिविजुअल क्लासिफायर्स में जो बायसनेस है, उसको रिमूव करने के लिए आपने क्या करा? इन तीनों के रिस्पॉन्स नोट करे, और उसकी एक एवरेजिंग कर दी, उससे आपने एक डिसीजन लिया। मान लो तीन में से दो ने बोला कि भाई एक ने वेरी गुड बोला, एक ने बेस्ट बोला, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव मिल गए, वन वाले केस मिल गए आपको 2, और जीरो वाले केस मिल गया आपको 1। तो इससे आपने डिसीजन लिया कि वोटिंग के हिसाब से भाई, दो ने तो बोला है कि गुड और बेस्ट, तो इसका मतलब मेरे को देखनी चाहिए, बट एक ने बोला है वर्स्ट, तो मुझे नहीं देखनी चाहिए। तो आप चले गए किस पे? 2 वाले पे। तो ये जो बायसनेस है, ये आपके जो डिसीजन मेकिंग में है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, राइट? तो इसका कहने का मतलब क्या है बच्चे, कि इंडिविजुअल जो आपके क्लासिफायर्स हैं, उनमें कुछ इंडिविजुअल जो आपके बायसेस हो सकते हैं, चांसेस आर देयर कि बायस्ड हों आपके, राइट? लाइक जैसे कि आपकी के मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो न्यूमेरिक वैल्यूज पे काम करते हैं, बट अगर आपका डेटा सेट में कैटेगोरिकल वैल्यूज हैं, तो उनमें अच्छे से डिसीजन मेकिंग जो होती है वो कुछ क्लासिफायर्स नहीं कर पाते हैं। उस केस में डिसीजन ट्री है जो आपको हेल्प करता है, जब आपका डाटा सेट में कैटेगोरिकल वैल्यूज हों, तो वहां पर भी वो एप्लीकेबल है। तो यानी कि डिफरेंसेस हैं आपके क्लासिफायर्स में। हर एक क्लासिफायर के काम करने का तरीका अलग है।
एक न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही समझता है केवल, और एक दोनों ही तरह की वैल्यूज पे काम करता है, राइट। तो आपने क्या करा, आपने कहा कि चलो मैं जो जो मेरे पास पॉसिबल मॉडल्स हैं उनको मैं इंडिविजुअली अप्लाई करूंगा डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स पे, और उनकी उनके जो भी प्रिडिक्शंस आएंगी उनको मैं एवरेजिंग कर दूंगा, या फिर मैक्स पोलिंग करके वोटिंग लेके मैं डिसीजन लूंगा कि मेरे को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या इसकी आउटपुट यही होगी कि या नहीं होगी, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? हैप्पी? आर यू गेटिंग? यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने समझ लिया कि भाई क्यों हम लोग इनसैम्बलिंग करते हैं, राइट। अब इनसैम्बल आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आपकी चॉइस है वो, राइट। आप मल्टीपल मॉडल्स को कैसे यूज करने वाले हैं ताकि आपको मैक्सिमम प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी मिले, उसके केसेस कई सारे हो सकते हैं, बट मेजरली जो हमारे पास जो जनरली जब हम इनसैम्बलिंग यूज करते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू डेवलप ensemble methods, then we have two major category. Some ensemble classifiers falls under type of bagging method. Some ensembles uses bagging method, and some ensembles uses boosting method. Boosting method, right? What it means to say, there are two methods of ensembling weak classifier into a strong classifier. We are having two methods, bagging and boosting. तो अब इसको इंडिविजुअली समझते हैं। बैगिंग मेथड दोनों ही लगभग सिमिलर तरीके से काम करते हैं, बट एक डिफरेंस है इन दोनों में, राइट। एक में तो आप पैरेलल पैरेलल लर्निंग करते हैं, एक में आप सीरियल लर्निंग करते हैं, राइट। तो पहले हम एक एक करके चलते हैं। तो पहले हम बात करते हैं बैगिंग मेथड की। इसमें इसमें मोस्ट मोस्ट जनरल आपका जो है वो क्लासिफायर जो है वो है RF, राइट। और ये बैकग्राउंड में डिसीजन ट्रीज को यूज करता है। और बूस्टिंग मेथड के अंदर आपके पास बहुत सारे हैं, एडा बूस्ट, XG boost, XG boost, multiple methods are there, GB boost, right? Multiple methods are there, but mostly ADA boost and XG boost are in trend right now, right? And in bagging method, RF, random forest is in custom, right? Okay, why so? Because they are their accuracy power, their power of handling large data is very good, right? And in the current industry, in the data science industry, currently all the companies are creating either RF or either ADA boost method, or using ADA boost method, right? So we'll understand it. So first of all, come to bagging. Bagging. What bagging means? Bagging means you are going to create bags of samples. Just remember, you are going to create bags of samples. What it means to say? It means to say, let's say you have, okay, let's say you have this data, right? This data set, okay. Okay, this is your actual data, right? Actual data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N, right? What you will do? First, you will create bags, right? So let's say out of this 20% you used in bag one, in bag one, bag one. Similarly, rest of 20% you have used in bag two, bag two. What you are doing? You are simply creating samples, right? Similarly, bag three, bag 4, bag 5. Now remember one thing here. If अगर आपने ये 20% जो आपने बैग वन में लिया है, तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम जब बैग टू क्रिएट किया जाएगा तो उसमें ये वाले सैंपल्स नहीं आ सकते। इट इज नॉट ट्रू। So it is a kind of row selection. It is a kind of row selection with replacement.
विद रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट इसका क्या मतलब है बच्चे, कि जो जो सैंपल्स, फॉर एग्जांपल ये वाला सैंपल, ये वाला सैंपल और ये वाला सैंपल इस 20% में आपके यहाँ पर आ गया, राइट। तो इससे आपने एक बेस मॉडल M1 ट्रेन कर लिया, राइट। तो अब जब आपको आप M2 को ट्रेन करेंगे, नेक्स्ट मॉडल को ट्रेन करेंगे, तो आप फर्दर सैम्पलिंग करेंगे 20% की, तो चांसेस आर देयर कि आपके पास इसके साथ ये दोनों भी इंक्लूड हो जाएं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से हटा नहीं रहे हैं डेटा, डेटा को हटा नहीं रहे हैं। जो डेटा आपने बैग वन में यूज किया था वो वापस यहाँ आएगा, फिर से रिसफलिंग होगी डेटा की, और फिर से आपका बैग टू क्रिएट किया जाएगा, राइट। तो उससे क्या होगा, उससे चांस है कि भाई आपका जो सैंपल यहाँ पे गया था वो यहाँ पर भी आ जाए, कोई कुछ सैंपल्स यहाँ पर भी आ सकते हैं, सिमिलरली वो कुछ सैंपल यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं। दैट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग रो सिलेक्शन विद रिप्लेसमेंट, राइट। दैट मीन्स आप ये नहीं कह रहे कि भाई आपने जो 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 सैंपल बैग वन में लिए हैं वो सैंपल्स बैग टू में, बैग थ्री में, बैग फोर में, बैग फाइव में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली ही बायसेस क्रिएट कर रहे हैं, है ना। ताकि बायसेस क्रिएट ना हो इसलिए आप रिप्लेसमेंट फंडामेंटल यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप कांस्टेंट कर देंगे तो होगा क्या, कि चांसेस आर देयर कि जो जो सैंपल्स इस ग्रुप में थे उनमें कुछ डिफरेंट वैल्यूज हों, और जो सैंपल्स फर्दर ग्रुप में जाएं उनमें कुछ डिफरेंट सैंपल्स हो। तो दोनों के सैंपल्स डिफरेंट होंगे तो डेफिनेटली अगर आप क्लासीफायर यूज कर रहे हैं तो दोनों अलग अलग डेटा पे क्लासीफायर यूज कर रहे हैं, तो चांसेस आर देयर कि बायस्ड हो जाएं आपके जो आपके क्लासीफायर्ड है, क्योंकि उनको डिफरेंट डिफरेंट डेटा मिला। बट अगर आप सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग यूज करेंगे तो उसमें चांस कम हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी किसकी, बायसनेस क्रिएट होने की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? आर यू गेटिंग? हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। क्यों हम रो सिलेक्शन विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं? ताकि हमारे बायसेस मिनिमाइज हो सके, राइट बच्चे? ठीक है। तो हमने पहले बैग बना लिए, मल्टीपल बैग्स बना लिए, और हर एक बैग को हमने एक अलग क्लासीफायर से ट्रेन किया, अलग मॉडल से ट्रेन किया। M4 को उससे, बैग फोर से, M5 को बैग फाइव से, फोर, थ्री, फाइव, टू, वन, इनको सबको अलग 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 बैग्स पे ट्रेन किया। और फिर हमने इन पे क्या करा, इनकी इनको टेस्ट पे यूज किया, राइट। मतलब हमने इस डाटा पे हमने इनको टेस्ट किया और इनसे प्रिडिक्शंस मांगी। तो फॉर एग्जांपल किसी किसी सैंपल के लिए, सेम सैंपल के लिए हम मानते हैं कि मान लो nth सैंपल, इस वाले सैंपल के लिए M1 ने एम वन ने जो प्रिडिक्ट किया वो था वन। M2 ने चांसेस आर देयर कि वो जीरो प्रिडिक्ट करे, मे बी हो सकता है वन प्रिडिक्ट करे। मान लो M3 ने उसे प्रिडिक्ट किया वन, M4 ने वन, और M5 ने जीरो। जबकि उसकी रियल वैल्यू फॉर एग्जांपल उसकी वन थी, एक्चुअल वैल्यू उसकी वन थी। बट जो हमें प्रिडिक्शंस मिले वो M1 ने वन दिया, M2 ने जीरो दिया, M3 ने वन दिया, M4 ने वन दिया, M5 ने जीरो दिया। तो ये जो आपने पोर्शन किया, इस पोर्शन को हम बोलते हैं, ये जो इतना हिस्सा आपने अभी तक किया है यहां तक, इसे हम बोलते हैं बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग, राइट। इसीलिए हम इस मेथड को बूट बूट स्ट्रैप एग्रीगेशन मेथड भी बोलते हैं। रिमेंबर, कई बार वो वाइवाज में पूछता है, इंटरव्यूज में पूछता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बूट स्ट्रैपिंग एग्रीगेशन, या बूट स्ट्रैप एग्रीगेशन, राइट। ठीक है। तो यहां तक तो आपका बूट स्ट्रैपिंग हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका एल्गोरिथम का एग्रीगेशन। तो अब हम क्या करेंगे, इन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया, तो अब हम सबकी आउटपुट को लेंगे, राइट। हर एक क्लासीफायर के आउटपुट को लेंगे, और यहां पर हम लोग यूज करेंगे वोटिंग मेथड। वोटिंग मेथड मेथड in this case we are using majority voting. Most of the time majority voting has been implemented, right? तो मेजोरिटी वोटिंग मेथड यूज करेंगे, और जिस जो भी हमारे पास मेजोरिटी में है उसको हम एज ए आउटपुट मानेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखो, वन के कितने केसेस हैं, वन के हैं थ्री, एंड जीरो के हैं टू। तो मेजोरिटी किसकी हुई, वन की। तो हम मानेंगे कि जो ये इंसेंबल क्रिएट हुआ इसके हिसाब से इसकी आउटपुट
इसकी जो प्रिडिक्शन है वो 1 होनी चाहिए। तो जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, एग्रीगेट कर रहे हो, एग्रीगेशन पोर्शन है, राइट। राइट बच्चे, गेटिंग माई पॉइंट। आपने हर एक जो आपने डाटा सेट है उसमें से मल्टीपल बैग्स बनाए, मल्टीपल सैंपल्स बनाए, और मल्टीपल सैंपल्स को अलग अलग आपके क्लासिफायर, अलग अलग मॉडल्स में, मल्टीपल बैग्स में आपने अलग अलग मॉडल्स को इंप्लीमेंट किया और उनसे उनकी आउटपुट ली, राइट। तो मान लो किसी एक्स इंस्टेंस के लिए, किसी एक्स इंस्टेंस के लिए M1 ने 1 दिया, M2 ने 0 दिया, M3 ने 1 दिया, M4 ने 1 दिया एंड M5 ने 0 दिया। फिर आपने यहाँ पर ये आउटपुट आने के बाद अब कौन सी सही आउटपुट है, इसके लिए आपने क्या करा, आपने कहा कि जो भी इन्होंने वोट दिए हैं इनके वोटिंग को कंसिडर करो, और जो मेजोरिटी वोटिंग है मेथड यूज करेंगे, और जो भी मेजोरिटी वोट्स हैं उनको हम एज ए आउटपुट डिक्लेयर करेंगे, राइट। तो बैगिंग मेथड समझ में आ गया बच्चे? हेलो, ठीक है, आवाज तो आ रही है ना बच्चे? यस सर, आ रही है सर। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो आपने वोटिंग मेथड यूज किया है, ये केस है जब आप क्लासीफायर की बात कर रहे हो, क्लासीफायर्स की बात कर रहे हो। बट अगर आप रिग्रेसर की बात करोगे, रिग्रेशन की बात करोगे, तो वहां पर आप इधर आप या तो उसका एवरेज ले लोगे या फिर मीन ले लोगे, मीन वैल्यू ले लोगे, जो भी वैल्यूज यहाँ पर प्रिडिक्ट करेगा इन इन जगहों पर उनकी मीन वैल्यू ले लोगे या फिर मीडियन वैल्यू ले लोगे, राइट। या फिर जनरली, इन जनरल हम लोग एवरेज मेथड यूज कर लेते हैं, एवरेज। तो आप यहाँ पर एवरेजिंग कर लोगे दोनों सारी आउटपुट का रिग्रेशन के केस में, और जो आपकी और एवरेज वैल्यू आएगी वो आपकी एज ए प्रिडिक्शन होगी, राइट। समझ में आ गया बच्चे? यस सर। चलो, अगर ये समझ में आ गया, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज बूस्टिंग। तो ये थोड़ा आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो क्लियर करने के लिए हम एग्जांपल से ही डायरेक्ट समझेंगे इसे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव boosting. How boosting works? Let's say ये आपका डेटा सेट है, इनकी रोज हैं, आपकी डेटा सेट की रोज 1 2 3, ये डेटा है आपका 4 5 6 7 8 9 10 11 सो ऑन, राइट। ये आपका डेटा है, ओके। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस है, पहले वाले केस में क्या था कि आप जो भी सैंपल्स ले रहे थे उनकी प्रायोरिटी फिक्स थी, राइट। उनकी प्रायोरिटी फिक्स थी, मतलब उनके वेट्स जो थे फिक्स थे, हर टाइम जब भी सैम्पलिंग हो रही थी तो वो कॉमन वेट्स का यूज कर रहे थे। तो फॉर एग्जांपल अगर इसमें n एलिमेंट है तो हर एक इंडिविजुअल रो का जो प्रोबेबिलिटी है या फिर इंडिविजुअल रो का जो वेट है वो हम यहाँ पर किससे निकालते थे, 1/n से, राइट। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, राइट। तो लेट से इनिशियल वेट्स हम लोग यहाँ पर देख देते हैं W0 से, ठीक है। तो कुछ भी वेट्स हो सकते हैं, लाइक अगर 11 है तो 11 है तो आपका वेट्स क्या क्या हो सकते हैं, 1/11, सबका वेट 1/11 होगा, 1/11, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11, 1/11, डॉट 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 1/11, राइट। क्योंकि एन आपका 11 है तो सबका इनिशियल वेट जो होगा W0 वो 1/11 ही होगा, ओके। अब अब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें से कुछ सैंपल्स बनाने शुरू कर देंगे, राइट। फॉर एग्जांपल आपने एक मॉडल लिया M1, राइट। इसमें से एक रैंडम सैम्पलिंग किया आपने, और लेट से आपका जो रैंडम सैंपल है वो ये है, लेट से ये है,
इसे हम बोल देते हैं लेट्स से डेटा वन, डेटा वन। ओके। ओके, इसमें मान लो आपके जो जो सेलेक्ट हुए वो हुए 1, 3, 6, 7, राइट। मान लो ये डेटा आपके सेलेक्ट हुए आपके डेटा वन में 1, 3, 6 एंड 7। अब इस पे अप्लाई किया गया M1, राइट। इस पे ट्रेन किया गया M1, और M1 ने इस पे ट्रेनिंग ले ली। अब जब ये ट्रेनिंग हो चुकी है, ये वाला जो जो डी ये हम लोग यूज कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग के लिए यूज कर रहे हैं, राइट। अब हम टेस्टिंग के लिए हम इसको पूरे के पूरे डेटा पे अप्लाई कर देंगे M1 को, राइट। तो M1 ने जो प्रिडिक्शन करी, मान लो फॉर एग्जाम्पल उसने जो जो प्रिडिक्शन करी उसमें से कुछ प्रिडिक्शन, ऑब्वियस ही बात है क्योंकि ये कंप्लीट डेटा पे तो ट्रेन हुआ नहीं है, ये तो केवल 4 पे ट्रेन हुआ है, और हमारे पास डेटा 11 का है, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये मिस क्लासीफाई भी करेगा कुछ वैल्यूज को। तो ठीक है, इसने सारे डेटा को यूज किया टेस्टिंग के टाइम पे, और कुछ वैल्यूज को फॉर एग्जाम्पल 5 को, 8 को, और लेट्स से 3 को, फॉर एग्जाम्पल 3 को उसने मिस क्लासीफाई किया। रेड सर्किल मीन्स मिस क्लासीफाई किया किसने? M1 ने। ओके। तो अब ये जो आपकी बूस्टिंग क्या कहती है, वो कहती है कि भाई अब नेक्स्ट टाइम जब हम दूसरे मॉडल में हम लोग सैंपल्स डालेंगे तो उसमें ये सैंपल्स आ जाएं जो जो मिस क्लासिफाइड है। उससे क्या होगा कि जब हम दोबारा इन मिस क्लासिफाइड पे ट्रेन करेंगे मॉडल को, तो ऑब्वियस ही बात है अगर इन मिस क्लासिफाइड पे वो ट्रेन होगा तो चांसेस आर देयर कि नेक्स्ट टाइम उस वो कम इनमें से कुछ कम को मिस क्लासिफाई करे, राइट। तो हमने दूसरा सैंपल बनाया, राइट। अब ये कैसे हम इंश्योर करेंगे कि ये वाले जो सैंपल्स हैं, रेड सर्किल्ड वाले जो सैंपल्स हैं, मिसक्लासिफाइड सैंपल्स हैं, ये आपके D2 में भी जाएं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेट अपडेट कर देते हैं। तो हम लोग नए वेट क्रिएट करते हैं, और उसमें क्या करेंगे हम लोग, जो जो ये रेड वाले रेड सर्किल्ड एलिमेंट्स हैं, इनके वेट को इनके वेट को हम लोग इंक्रीज करेंगे, और जो करेक्ट क्लासिफाइड हैं उनके वेट को, करेक्ट जो प्रिडिक्शन थी उनके वेट को हम रिड्यूस कर देंगे। ऑब्वियस ही बात है कि ये वेट, 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 apart from these one all rest weights विल बी लेसर देन दीज वेट्स, राइट। जो भी आपके आपके पर्पल कलर में सर्किल दिखाए हैं, ये आपके हाईएस्ट वेट होंगे, क्योंकि आपने इनके वेट तो इंक्रीज करें हैं और करेक्ट प्रिडिक्शन के डिक्रीज करें हैं। तो ये ऑब्वियस ही बात है, इनका जो वेट है ये ज्यादा होगा, ये हाई वेट होंगे। ऐसे ये भी हाई वेट होगा, ये भी हाई वेट होगा। तो ऑब्वियस ही बात है जब हम सिलेक्शन होगा, सैंपलिंग होगी, तो इनकी प्रायोरिटी हाई होगी, तो इनके ज्यादा चांसेस हैं इसमें इंक्लूड होने के। तो ये हम वाया वेट हम लोग इंश्योर कर पाते हैं कि भाई अगर हम वेट इंक्रीज कर दें तो इनके चांस हो जाएंगे ज्यादा सेलेक्ट होने के। तो 3, 5 एंड 8 got selected, and apart from these one more got selected, let's say it was 9, राइट। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये तीनों आपके वही वही थे जो मिसक्लासिफाइड थे, तो उनको आपने नेक्स्ट सैंपल में डाल दिया, और उस पे हमने नया मॉडल इंप्लीमेंट करा, ट्रेन किया, और उस ट्रेन मॉडल को फिर से हमने पूरे के पूरे डेटा पे क्या किया बच्चे, टेस्ट किया। अब ऑब्वियस ही बात है, ये वाला मॉडल जो M2 है, ये भी कुछ ही सैंपल्स पे आपके क्या कहते हैं ट्रेन हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है ये भी कुछ मिसक्लासिफाई करेगा। तो लेट्स से इसने मिसक्लासिफाई किया टेस्टिंग के बाद 2 को एंड 7 को। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वेट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सबका वेट हम डिक्रीज करेंगे, और केवल 7 एंड 2 का वेट हम इंक्रीज करेंगे। तो दैट मीन्स 2 का वेट एंड दिस 7 का वेट हाईएस्ट होगा। तो फिर हम जब हम नेक्स्ट सैम्पलिंग करेंगे, नेक्स्ट बकेट बनाएंगे डेटा की D3, तो उसमें चांस है कि आपके 2 सेलेक्ट होगा और
7 सेलेक्ट होगा। उसके बाद फिर आपका कोई भी वो रैंडमली सेलेक्ट कर सकता है, 10, 11। फिर इस पे हम नेक्स्ट फर्दर मॉडल M3 ट्रेन करेंगे, ठीक है। और फिर उसको उसको हम इस पे टेस्ट करेंगे, फिर वो कुछ मिसक्लासीफाई करेगा, फिर उनको हम वेट को इंक्रीज करेंगे, रेस्ट के वेट को डिक्रीज करेंगे। ऐसे ऐसे करते करते हमारे पास मल्टीपल मल्टीपल सैंपल्स के लिए आपने फॉर एग्जांपल लेट्स से M4 तक आपने ट्रेन करा, फॉर एग्जांपल लेट्स से। हो सकता है आपने M10 तक मॉडल 10 मॉडल अप्लाई करे हो, ठीक है। तो ठीक है, बस यहाँ पर ये काम हो गया। इसके बाद आप वही काम करेंगे जो काम आप बैगिंग में कर रहे थे। हर एक की आउटपुट किसी भी रिस्पेक्टिव एक्स के अगेंस्ट हर एक की आउटपुट को आप लेंगे। फॉर एग्जांपल M1 ने प्रिडिक्ट किया 1, M2 ने प्रिडिक्ट किया 0, M3 ने 1, M4 ने 1, किसी एक्स के लिए, राइट। तो हम यहाँ पर ऑब्वियसली बात है वोटिंग मेथड यूज करेंगे, तो मेजोरिटी वोटिंग के हिसाब से आपका जो इसकी एक्स की आउटपुट आएगी वो 1 आएगी, वो प्रिडिक्ट करेगा 1, राइट। समझ में आ गया बच्चे? डिफरेंस समझ में आया? यस सर। एक में तो आप सबको इक्वल प्रायोरिटी दे रहे हो, जब भी आप सैम्पलिंग हो रही है तब आपकी इक्वल प्रायोरिटी मिल रही है सबको, है ना। जब भी आप रिसैम्पलिंग कर रहे हो, मान लो जब आपने बैग 1 क्रिएट कर दिया था, उसके बाद जब आपने रिसैम्पलिंग करके बैग 2 क्रिएट किया, तो उसमें सबको सेम प्रायोरिटी मिली, 1/11 ही मिली। उसके हिसाब से उसने रैंडमली सेलेक्ट किया। इस केस में क्या डिफरेंस है? इस केस में इस केस में जो आपके मिस क्लासिफाइड है उनको प्रायोरिटी दी गई है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब हम उन पे ट्रेनिंग करें तो वो करेक्ट क्लासिफाई हो सके, राइट। तो मिस क्लासिफिकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है इसमें, राइट, ताकि जो जो तो करेक्टली क्लासिफाइड हो रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हो ही रहे हैं। बट जो मिस क्लासिफाई हो रहे हैं हमें उनको देखना है, उनको करेक्ट क्लासिफाई करवाना है। इसलिए हम लोग पहले M1 में कुछ सैंपल ले रहे हैं, उसके जो मिस क्लासिफाइड आ रहे हैं उसको फिर हम पास ऑन कर रहे हैं M2 में, फिर उसके जो मिस क्लासिफाइड आ रहे हैं उसको हम पास ऑन कर रहे हैं M3 में, फिर उसके जो मिस क्लासिफाइड आ रहे हैं M4 में। तो एक तरह से आप सीक्वेंस क्रिएट कर रहे हो, सीक्वेंशियल मॉडल बना रहे हो, राइट। राइट डियर। यस सर। और प्रीवियस केस में क्या हो रहा है? प्रीवियस केस में सीक्वेंशियल नहीं हो रहा है, पैरेलल हो रहा है, राइट। यहाँ पर जो ट्रेनिंग हो रही है पैरेलल हो रही है, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे, ठीक। ऐसे ये पैरेलल हो रही है, यहाँ पर पैरेलल हो रही है, यहाँ पर पैरेलल हो रही है, पैरेलल हो रही है। तो अगर आप डिफरेंस देखना चाहो दोनों में, तो अगर आप बैगिंग एंड बूस्टिंग में डिफरेंस देखना चाहोगे तो आपको सीधा सीधा खुद ही याद आ जाएगा कि एक में आप पैरेलल लर्निंग कर रहे हो, वो किस में कर रहे हो? बैगिंग में। एंड एक में आप क्या कर रहे हो बच्चे? सीक्वेंशियल लर्निंग कर रहे हो, सीक्वेंशियल लर्निंग कर रहे हो। लर्निंग सीक्वेंशियल हो रही है। बाद में आप जब एग्रीगेशन यूज कर रहे हो तो वहां पर बाद में आप वोटिंग मेथड का यूज करके या फिर एवरेजिंग मेथड का यूज करके प्रिडिक्शन कर रहे हो, राइट। और दूसरा दूसरा डिफरेंस क्या क्या समझ में आया आपको? यही तो क्या समझ में आया बच्चे? कि हर एक मॉडल, ऑल मॉडल हैव इक्वल वेटेज। In this case, in bagging case, all the model have equal weightage, but in the case of boosting, all the models not have equal weightage. Why? Because you are at the time of resampling, you are updating the weights of every sample, right? And you are increasing the weight of misclassified samples and decreasing the weight of correctly classified samples, right? So this is the bagging and boosting, right? Have you all understood it? समझ में आ गया डिफरेंस? कंफ्यूजन है थोड़ा सा तो पूछो बच्चे। समझ गए सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो बैगिंग एंड बूस्टिंग है, ये आप अगर आप इस फील्ड में जाएंगे तो आप देखना मोस्ट ऑफ द टाइम आप इन्हीं का यूज कर रहे होंगे, इन सैम्पल मेथड्स का यूज कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो आपकी एक्यूरेसी है वो फार बेटर देन है इंडिविजुअल क्लासिफायर से।
जब आप अगर इंडिविजुअल क्लासिफायर लगाते हैं तो उसकी जो एक्यूरेसी है वो उतनी अच्छी नहीं आएगी जितनी अच्छी इनकी आएगी, राइट। तो इसमें जो फंडा क्या है कि भाई आपके जो इंडिविजुअल क्लासिफायर्स में बी वीक क्लासिफायर्स, वो वीक क्लासिफायर्स हो सकते हैं, M1 M2 M3 M4 कैन बी ए वीक क्लासिफायर, बट व्हेन यू आर कंबाइनिंग दोज in a in a single model, when you are ensembling those in a single model, that resultant model is strongest model, right, out of these M1 M2 M3 M4। तो जो प्रिडिक्टिव पावर है वो इंडिविजुअल जो M1 M2 M3 M4 के जो इंडिविजुअल प्रिडिक्टिव पावर थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, बट जब आपने उनका इंसेंबल क्रिएट किया तो जो आपको मॉडल क्रिएट होगा वो बेटर एक्यूरेसी देगा आपको, इवन साथ में वो बायसेस को भी रिड्यूस करेगा, राइट। राइट गाइस? Yes, sir. Okay, it is clear to you? Yes, sir. Okay, if it is clear to you, that's all for today.